Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning and Assalamu alaikum. On behalf of the Iqbal Institute of Policy Studies, I welcome you all to our webinar titled From Property Dealing to Real Estate Science. My name is Umar Bashir and I am a senior research analyst at the Institute. To begin with, I would just like to say a few words about the Iqbal Institute and what it represents. It is an independent research institute with the mission to generate, track, and advocate public policies towards the achievement of sustainable development in Pakistan. It is the first think tank in Pakistan that has a sharp focus on research on all dimensions of real estate development. In addition to taking on research projects for policy advocacy, IPS has embarked upon the concept of swift research, wherein it undertakes time-bound research and compiles a series of reports for policy and decision makers' attention. The topic in discussion for today's webinar is of great importance as Pakistan's real estate sector is an engine of economic growth for the national economy. However, a lack of regulation, lack of access to information, and malpractices are some of the main reasons why the sector has not reached its full potential. If reforms and best practices are introduced in the real estate sector, Pakistan can become a $1.5 to $2 trillion economy by 2030. The real estate market requires innovation, technology adoption, and the development of trained and regulated human resources. Today, being established as the first real estate think tank of Pakistan, the Iqbal Institute of Policy Studies aims to bring to light some of the key developments in the real estate sector that have revolutionized the industry and set a path for growth in a positive direction. The webinar is also being attended by Lieutenant General Haroon Aslam, who is the President IPS Advisory Board. He is a seasoned veteran with 40 years of experience in the armed forces and more than 8 years of experience in the private sector. Welcome, sir. We are also fortunate to have expert panelists from diverse backgrounds who are considered specialists in their respective professions. Our panelists include Mr. Atif Irfan Abbasi, who is an experienced business development executive with more than 8 years in the real estate sector of Pakistan. He is currently a regional manager at Grana.com, and he will speak on the topic Pakistan's first online real estate marketplace. We also have Mr. Faisal Naqvi, who has a demonstrated history of working in the real estate sector. He is a regional manager at Agency 21 and is also a certified real estate advisor. He will speak on the topic transforming real estate transactions. Our next speaker is Mr. Sheikh Nisar, who has more than 10 years of experience in the public and private sectors. He is a town planner by profession with a specialization in housing and urban development. He is the head of operations at PropShore Digital Solutions. He will speak on the topic importance of data in the real estate sector. We also have Ms. Shaheen Arif, who is a geoinformatics engineer from NUST with a master's in urban planning. She has led the development of several technical products using GIS systems and is currently a product manager at the Grana Innovation Lab. Her topic is role of technovation in the real estate sector. As regards the conduct of the webinar, each participant will speak for 15 minutes, and after the round of speech by all participants, we will have a general discussion and Q&A session. And यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप इंग्लिश, उर्दू या अपनी कोई भी इलाकाई ज़ुबान में अगर बात करना चाहें, तो आप अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार करें. To begin with, I would like to call Mr. Faisal Naqvi to speak on his topic. Over to you, sir. Thank you very much. I'm very excited to start with this, and thank you very much, especially to Jannat Saab to have me on this session. Sir, in real estate, sir, it's been almost 12 years in working in real estate sector. मैंने real estate join की reason I was very much sure that this is a Jurassic industry. पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो वो उसे मैं रियल एस्टेट सेक्टर को ही कहूँगा. रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि इस इंडस्ट्री के साथ रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ऑलमोस्ट 60 अलाइड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रह के भी. मैं डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा,
real estate dealing or transformation from real estate dealing to real estate sciences. I had an experience, and I worked with such people, those who are called Patwari in local language. Basically, they call themselves real estate dealers because I have seen them working with the same way in malpractices where the seller and buyer was not informed with the actual price and the price their plot was being sold. और मैंने कुछ न्यू वे में भी काम करते हुए लोगों को देखा. मैं अगर इनको 3 सेगमेंट्स में लेके जाऊं तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा. 1985 तक अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर्स को देखें तो उसमें आपको पटवारी सिस्टम नजर आता है या अलॉटमेंट सिस्टम नजर आता है, जहां पे अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी. उस टाइम तक प्रॉपर्टी डीलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था मार्केट. देयर वर नो प्रॉपर्टी डीलर्स इन द मार्केट एट दैट टाइम. वहां पे जस्ट पटवार सिस्टम था जहां पे फर्क था और इस तरह की चीजें चलती थी वहां पे प्रॉपर्टी. 1985 ऑनवर्ड जब ये सोसाइटीज इमर्ज हुई और सोसाइटीज आना शुरू हुई, लाइक 1995 की अगर बात करें या 90s में जब बहरिया टाउन आया तो रियल एस्टेट कमर्शियल हुआ थोड़ा सा. वहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो अपने ऑफिसेज बनाएं और आके प्रॉपर्टी डीलिंग करें और एक सेक्टर्स के अंदर रह के अपने काम को. तो दूसरा ईरा जो है वो 1985 के बाद का है जहां पे डीलर्स इन्वॉल्व हुए इन प्रॉपर्टी सेलिंग एंड परचेजिंग. बट अनफॉर्चुनेटली ये वही लोग थे जो पहले पटवार या उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते थे, लेकिन उन्होंने सोसाइटीज के अंदर अच्छे फैंसी ऑफिसेज बनाए और उन्होंने आके काम करना शुरू किया. बट एट द सेम टाइम कुछ नए लोग और कुछ यंग यूथ भी इन्वॉल्व हुई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर. ये दूसरा एरिया है जो कि मैं जिसको एक्सपीरियंस किया अपने टाइम में. दैट एरा इज स्टिल इन 2015 तक अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग इन्वॉल्व हुई. अनफॉर्चुनेटली मैंने जो एक्सपीरियंस किया इस सारे कैरियर में अपने 12 साल के दौर में, रियल एस्टेट सेक्टर को इतना अच्छा सेक्टर नहीं माना गया. लोग रियल एस्टेट सेक्टर्स में या रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ डील करते हुए एक उनके माइंड में एक ये चीज जरूर रहती है कि शायद यहाँ पे मेरे साथ कुछ ना कुछ 2 नंबरी होगी या मेरे साथ मैल प्रैक्टिस इन्वॉल्व होगी. ये एक जनरल कॉन्सेप्शन है. मैं एजेंसी 21 को ज्वाइन करने का जो रीजन है, बैक 3 years back I joined Agency 21. The reason behind joining this Agency 21 came into the market with the slogan that changing the image of real estate in Pakistan. And I was wondering at that time कि कोई ऐसी मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी जगह मिले जहां पे मैं कुछ रियल एस्टेट को लर्न कर सकूं, क्योंकि ये छोटी इंडस्ट्री नहीं. देयर इज अ ह्यूज थिंग इन दिस इंडस्ट्री जहां पे आपको समझने की जरूरत है. जैसे कि आपने इस टॉपिक का नाम रखा रियल एस्टेट साइंस. दिस इज बेसिकली साइंस. आप चाहे सोसाइटी लगा रहे हैं, चाहे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको उसकी पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए. जो कि आई एम रियली सॉरी कि पाकिस्तान में हमारे कुछ गवर्नमेंट लेवल पे भी चीज़ों को उतना अच्छे तरीके से सेक्टर को नहीं एड्रेस किया गया, बहुत निगलेक्ट किया गया रियल एस्टेट सेक्टर. जिसकी बड़ी वजह यह है कि आज तक इसकी रेगुलेशन नहीं है पाकिस्तान में. अभी एक रेरा बिल आया पीछे, लेकिन दैट इज नॉट एट दैट स्मार्ट दैट रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान मेरे ख्याल में. तो मैं अगर इसको आगे लेके चलूं तो मैंने जो एजेंसी 21 को ज्वाइन किया क्योंकि इनका एक स्लोगन, इनका एनवायरनमेंट, इनका जो कल्चर मुझे बहुत ज्यादा उसने इम्प्रेस किया और उसकी ज्वाइनिंग की वजह भी यही थी. फिर इस एजेंसी 21 की जो वैल्यूज हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली रियल एस्टेट को शफीक अकबर साहब के साथ काम करके जो चीज जो सीईओ है ग्रुप के, और उनका 17 years का एक्सपीरियंस है अपना यूके का, वो एक्सपीरियंस वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर को अपने एक्सपीरियंस से, और उसमें काफी हद तक कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अभी एजेंसी 21 में जो हमारी 4 कोर वैल्यूज हैं, जिसमें इंटेग्रिटी सबसे पहला पार्ट, ये यहाँ पे रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि हमने इसको टोटली ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेलर एंड परचेजर्स को टोटली अवेयर होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी किस प्राइस में सेल हो रही है, किस प्राइस में खरीदी जा रही है. बोथ पार्टीज को एंगेज करके उनको आमने सामने बिठा के यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं.
प्लस नई चीजें जो मार्केट में आई 2015 के बाद, जब ये पोर्टल आना शुरू हुए और जब ये बाकी चीजें, लोग वैसे भी अवेयर हो गए। अभी इन्होंने इस वैक्यूम को फिल किया एजेंसी 21 ने, जो कि उस टाइम की जरूरत थी, आज से 5 साल पहले जब ये मार्केट में एजेंसी 21 आई। वहां पे उस वक्त एक वैक्यूम था कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो डीलर्स पे नहीं था। लोग भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे बहुत तेजी से मार्केट इवॉल्व हुई, जैसे क्रीम आ गई, जैसे उबर आ गई मार्केट में, फूड पैंडा आ गई, टेक्नोलॉजी को लेके आए मार्केट, और उन्होंने उन तमाम सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म किया थ्रू टेक्नोलॉजी। एजेंसी 21 का भी यही कॉन्सेप्ट था कि हम इस मार्केट को ट्रांसफॉर्म करें, थ्रू डिजिटाइज करें इसको, इलेक्ट्रॉनिकली इसको लेके चलें, ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो पाकिस्तान के रियल एस्टेट में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ओवरसीज जो हमारे लोग बाहर बैठे हैं, उनका भी ट्रस्ट बिल्ड हो कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा अदारा मौजूद है या ऐसी कंपनी मौजूद है जहाँ पे अगर हमें रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 सालों में लोगों को कॉन्फिडेंस विन करने में काफी हद तक कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने मॉडल बनाया है एजेंसी 21 का, प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज में, जिसमें हम क्लाइंट को टोटल लीगल कवर देते हैं। यहाँ पे हमारे बेस्ट लॉयर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि आपको प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज में तमाम लीगल कवर देते हैं। प्रॉपशोर जैसी कंपनी हमारे साथ है, जो एक सर्टिफिकेट देती है किसी भी लैंड परचेज में। क्लाइंट को आइडिया होता है कि ये लैंड जो मैं परचेज कर रहा हूँ इस पे कोई लिटिगेशन तो नहीं। मतलब मेरे ख्याल में इस कंपनी या इस तरह के कॉन्सेप्ट का एक वैक्यूम था जब ये कंपनी इस टाइम मार्केट में आई, और उसी का रीजन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक्सेल कर रहे हैं मार्केट में, और इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है रियल एस्टेट में, सबसे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल लेके चल रहे हैं। दिस व्हाट आई वांट टू से ओनली व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन दिस। और प्लस यहाँ पे पहली दफा पाकिस्तान में नस्ट से सर्टिफिकेशन करवानी, प्लस डिग्रीज इन रियल एस्टेट, एजुकेशन को इन्वॉल्व करना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से पढ़ के रियल एस्टेट को ज्वाइन कर रहे हैं। बेसिकली इस रियल एस्टेट सेक्टर को रिकग्निशन या रिकग्नाइज करवाया है मार्केट में एजेंसी 21 में, कि अब लोग रियल एस्टेट सेक्टर में अपने बच्चों को भेजने से घबराते नहीं, जो कि इससे पहले शायद लोग हेजिटेट करते थे कि रियल एस्टेट में अपने बच्चों को नहीं भेजना। अब लोग जो है हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारे बच्चे को आप ले लें, और अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग हो रही है यहाँ पे। दिस आई वांट टू से। थैंक यू सर, थैंक यू। आप उमर, आपकी इजाजत से आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग। मैं ये क्वेश्चन है आपसे, ये बताइए कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, तो उनमें जो बेसिकली जो व्हाट क्वालिटीज आर यू लुकिंग फॉर, किस टाइप के आप चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स आए आपके पास? जी सर, देखिए सर, पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है वो बहुत, पाकिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़े मुल्कों में जहाँ पे यूथ है हमारे इस मुल्क में, जिनकी एज जो है वो 35 से बिलो है, 25 तक है लोग। सर यहाँ पे जो हमारा HR सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पे जो सिलेक्शन है हमारी, हम लोग मार्केट के एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, बेशक उनका रियल एस्टेट से कोई एक्सपीरियंस ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी चॉइस ये होती है कि डिसेंट पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के हम लोग मार्केट से लें, जिन्हें जो प्रेजेंटेबल हों। सर लाइफ सेविंग्स होती हैं किसी भी इंसान की, जो कि वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहा होता है, तो डेफिनेटली वो लोग ये चाहेंगे कि जिन लोगों के साथ हम लोग डील कर रहे हैं वो लोग भी डिसेंट हों, प्रेजेंटेबल हों, उन्हें बात करने का तरीका हो, उन्हें नॉलेज हो, मार्केट का चीजों का नॉलेज हो। तो हम लोग सर कोशिश हमारी ये होती है कि यंग डायनेमिक लड़के मार्केट से, जो कि ग्रेजुएट्स, मैक्सिमम ग्रेजुएट्स को हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लड़के भी हैं हमारे साथ, नर्स से पढ़े हुए लड़के हैं हमारे पास इस टाइम यहाँ पे। मल्टीपल ऑप्शंस सर यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे लड़के हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं। यहाँ पे हमारे पास आर्मी बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनके वालिद या उनके बुजुर्ग जो हैं वो आर्मी से हैं, बल्कि इवन हमारे पास यहाँ पे एक साहब हैं जिनकी अपनी सारी फैमिली बाहर है, ओवरसीज में उनका कंस्ट्रक्शन के बिजनेस हैं, दुबई में और सऊदी अरेबिया में, बट ही यूज्ड टू वर्क हियर विद अस
क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एजेंसी 21 का कल्चर और ये जो चीजें हैं ये रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं, एंड ही इज वेरी वेल सेटल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बड़ी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, बट ही इज विद अस नाउ। तो हम लोग बेसिकली जो एचआर सिस्टम है उसमें हम ग्रेजुएट्स जी लेकिन एक तो आपने कहा कि ही शुड बी सफिशिएंटली एजुकेटेड, और दूसरी बात यह है कि आई थिंक प्रेजेंटेबल आपने कहा, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और ये मैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर रहा हूँ इन 60s एंड 70s में जब हमने देखा तो इट वाज बहुत ही अनएजुकेटेड लॉट तो थी, वो लोग ये प्रॉपर्टी डीलिंग में आते थे, और ला मोहल्ला आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास अगर चले जाते तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज और जो डिमीनर था वो इतना इंटिमिडेटिंग होता था कि आदमी वैसे सहम जाता था कि मेरे साथ शायद फ्रॉड ना हो जाए। तो ये ओवर टू ओवर, सॉरी मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा था, मुझे couldn't resist that question. जी, सो थैंक यू मिस्टर फैसल, आपने बहुत अच्छी चीजें हाईलाइट की। पाकिस्तान में आपने हिस्ट्री पे बात की कि प्रॉपर्टी डीलिंग कब से स्टार्ट हुई, तो मोस्टली ये 1995 के बाद, और काफी No, it's आपने जिक्र किया कि 1990 onward. 1990 ऑनवर्ड्स, एंड आपने मेन बात की कि यहाँ पर आप लोग इंटेग्रिटी को बहुत फोकस करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो आपकी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में, और आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं रियल एस्टेट एडवाइजर्स के अंदर। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। सो नाउ आई कॉल मिस्टर आतिफ इरफान अब्बासी टू टेक द फ्लोर। ओवर टू यू सर। Thank you very much, Umar. सबसे पहले before I start, I would like to thank IPS for this opportunity. Basically जो मेरा टॉपिक है basically ऑनलाइन मार्केट प्लेस, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। जैसे कि सबसे पहला रोल जो आएगा वो बेसिकली रियल एस्टेट एडवाइजर्स का, मतलब इन टर्म्स अगर आप बात करें एजेंसी 21 जैसी जितनी भी रियल एस्टेट एजेंसीज बनेंगी वो इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस को बेसिकली असेस करें। इस टाइम पे व्हेन यू टॉक अबाउट द मार्केट, मतलब इस्लामाबाद मार्केट की जब आप बात करेंगे तो 1546 रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स, 1546 का जो नंबर है उसमें कोई भी मतलब डिवीजन नहीं हुई है। 1546 जो एजेंट्स हैं वो हर स्केल पे काम कर रहे हैं। स्केल्स बेसिकली उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि रेंट की प्रॉपर्टी का 10-15 हज़ार रुपए की ट्रांजेक्शन से लेके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन से लेके, जिसके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे हैं। सेकंड जो बेसिकली एलिमेंट हमारे पास ऑनलाइन मार्केट स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व है वो बेसिकली वो लोग हैं जो हमारे पोर्टल पे आते हैं, मतलब हमारे जो बेसिकली ट्रैफिक है जो आके डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे अपनी लीड जनरेट करते हैं, उनके बारे में क्वेरी करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये दो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। जो तीसरा स्टेक होल्डर है वो बेसिकली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो बेसिकली हमारी अथॉरिटीज हैं जो बेसिकली ट्रांसफर प्रोसेस या जो भी ट्रांजैक्शन के बाद वाला प्रोसेस है वो बेसिकली फुलफिल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन टर्म्स व्हेन यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब सीडीए की ट्रांसफर पॉलिसी एक पूरा प्रोसीजर है जिसको आपने बेसिकली यूटिलाइज करता है और आप उसमें बेसिकली अपना ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। अब बारी बारी अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहला जो रोल आता है हमारे बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट्स या एडवाइजर्स, मैं पर्सनली उन्हें रियल एस्टेट एडवाइजर्स कहना चाहूंगा। रियल एस्टेट एडवाइजर्स का उनका मेन रोल बेसिकली एडवाइजिंग है। एडवाइजिंग से लेना देना बेसिकली टू इन्फॉर्म कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट है वो किस स्पेसिफिक मार्केट क्वालिटीज में स्टैंड करता है, उसकी फ्यूचर वैल्यूज क्या हो सकती हैं, उसके मतलब अभी करंट वैल्यूज क्या हो सकती हैं। जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें जो करंट वैल्यूएशन है किसी भी प्रॉपर्टी की करंट वैल्यूएशन अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हर लोग अपने तरीके से बेसिकली वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है इन इस्लामाबाद तो आप उसकी मोस्ट रिसेंट ट्रांजैक्शन देखते हो। मोस्ट रिसेंट ट्रांजैक्शन भी एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू डेवलप होती है। कोई बयाना एग्रीमेंट या सेल्स एग्रीमेंट या एग्रीमेंट टू सेल नहीं देखता। वो बेसिकली इस तरीके से होती है कि ये लास्ट ट्रांजैक्शन जो पिछली गली में हुई है वो फॉर एग्जांपल 7 करोड़ पे की हुई है तो इस सेकंड गली में भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 7 या 8 के करीब में होगी। कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है कि आप वेरीफाई कर सकें कि जो प्रॉपर्टी की जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू बताई जा रही है कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बार बार मार्केट में जाते हैं, डिफरेंट रियल एस्टेट एजेंट्स या एडवाइजर से हम लोग मिलते हैं, उनको एजुकेट करते हैं।
लिस्टिंग्स एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। हमारा एक छोटा सा अलमिया रहा है कि रीसेंट प्रैक्टिसेस लोगों की बड़ी डिफरेंट है रिगार्डिंग लिस्टिंग्स। वो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी को भी लेके डुप्लीकेट करके बड़े मैल प्रैक्टिसेस रहे हैं इस चीज में। उस चीज को प्रैक्टिस करके लोगों को अभी किसी ने कभी एजुकेट नहीं किया कि एक लिस्टिंग की राइट पॉलिसीज क्या है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। दो तस्वीरें लेके अजीब तरीके से लेके वो लोग लिस्टिंग लगा देते हैं। उससे ये होता है कि जिन लोगों की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो लिस्ट हो रही होती है हमारे पोर्टल्स पे, वो भी मतलब कंपैरेटिवली अपनी अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को तकरीबन 3-4 तस्वीरों में तबाह होते हुए देख रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए दैट्स लिस्टिंग। ठीक है, जियो टैग वेरीफाइड लिस्टिंग। जियो टैग से मुराद उसकी पिन लोकेशन होना, वेरीफाइड से उसकी अवेलेबिलिटी होना, और वो लिस्टिंग एग्जिस्ट करती हो ऑन ग्राउंड में और राइट वैल्यूज उसके अगेंस्ट पिच आउट की हो। ये ना हो प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की हो, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल आप उसे 7 करोड़ रुपए में लिस्ट डाउन कर रहे हैं। अब जैसे इन टर्म व्हेन यू टॉक अबाउट घराना, तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है एक लिस्टिंग को पब्लिश करने के लिए। सबसे पहले जब लिस्टिंग आपके पास आती है वो डायरेक्ट पब्लिश नहीं हो सकती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसी लिस्टिंग आपके पोर्टल पे आती है उसको एक आपका कैटलॉगर वेट करता है, उसकी जो स्पेसिफिक चीजें हैं या उसकी जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं उनके अगेंस्ट उसे कैटलॉग करता है। जब वो कैटलॉग कर लेता है तो सेकंड ये मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के पास आती है। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव उन प्रॉपर्टीज को दोबारा रिव्यू करता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट मतलब ग्राफिकल कॉन्टैक्ट। फिर तीसरा आपके पास वो जो लिस्टिंग आपके एएम के पास आती है फॉर रिवीजन ऑफ कैटलॉग इन मीडिया। फिर लास्ट में वो लिस्टिंग आपके एरिया मैनेजर के पास आती है। वो एरिया मैनेजर उस लिस्टिंग को कंप्लीटली रिव्यू करता है प्राइसिंग के अगेंस्ट, उसकी अवेलेबिलिटी के अगेंस्ट, उसकी नेचर के अगेंस्ट, देन वो लिस्टिंग जाके पब्लिश होती है। इससे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हमारे रिजॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट अमाउंट ऑफ द लिस्टिंग की जो प्राइस है वो कोट हो रही होती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लिस्टिंग की ट्रू एसेंस में रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। F6, F7, 8 इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज में 10-10, 15-15, 22-22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, मगर उन्हें जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो बहुत अनफेयर है उन प्रॉपर्टीज के साथ। कभी कभार प्रॉपर्टीज को इतना अच्छा करके दिखा दी जाती है, जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज बहुत ही बुरी लग रही होती है। कभी कभार प्रॉपर्टीज को इतना बुरा दिखा दिया जाता है, जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी ही नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होते क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओरिजिनली इतनी अच्छी होती है। ये सारी चीजें आप इस प्रोसेस में फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट एक एलिमेंट जो हमें एडवाइजर और रियल एस्टेट एजेंट कम्युनिटी से चाहिए होता है वो बेसिकली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। उन्हें पुराने टाइम्स में ये एडवाइस किया गया कि आप फेक लिस्टिंग भी लगा दें, जो मर्जी इंफॉर्मेशन देनी दे दें, आपके पास लीड आ जाएगी। लीड आना एक डिफरेंट एलिमेंट है, उसे हम क्लासिफाइड में लिंक अप करते हैं। बट ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए हमें एक राइट अमाउंट ऑफ मतलब राइट इंफॉर्मेशन, हर चीज रिलेटेड टू अ लिस्टिंग एक्यूरेट फॉर्म में चाहिए टू डेवलप। फिर एक आपका एलिमेंट आता है बेसिकली जो बेसिकली प्रॉपर्टी हंटर्स होते हैं, मतलब इन टर्म्स लीड्स जिन्हें हम कहेंगे, जो इन पोर्टल्स को यूटिलाइज करके प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करते हैं। वो मल्टीपल जगहों पे एक ही चीज के अगेंस्ट मतलब लीड्स वगैरह जनरेट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं। फैसल भाई ने एक पॉइंट रेज किया, उन्होंने बताया 90s में इस तरीके से होता था। तो एक छोटा सा मैं आपको केस बता देता हूँ कि 90s में फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्रॉपर्टी लेने आता था, उसके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दो होते थे। एक जंग का अखबार होता था, जंग का क्लासिफाइड जिसे कहा जाता था, और दूसरा रियल एस्टेट एजेंट। और रियल एस्टेट एजेंट उनका कोई रेफरल बेस होता था कि चाचा या भाई ने किसी ने आपको रेफर कर दिया, और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन का चैनल नहीं होता टू वेरीफाई। ठीक है, अब जो जिस टाइम में हम लोग करंटली काम कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। उसमें ये है कि आपके पास जो बंदा आता है वो उस टाइम पे ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके आ रहा होता है कि वो उसको उस टाइम पे मार्केट रेट आपसे कंपैरेटिवली ज्यादा पता होता है। वो आपको बता सकता है कि सर ये भी रेट चल रहा है, ये भी रेट चल रहा है, ये भी। उस एलिमेंट में वही लिस्टिंग वाला एलिमेंट रिपीट हो जाता है। अगर रॉन्ग लिस्टिंग लगी हो वो उसका माइंडसेट खराब कर देता है कि यार 160 में प्लॉट मिल रहा था, आप मुझे कह रहे हैं 190 में। बट उनको ये रियलाइज कराना जरूरी होता है कि यार वो जो 160 की लिस्टिंग पब्लिश हुई ऑन ओरिजिनल या ऑन ग्राउंड वो मौजूद नहीं है। ये कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए। बट जो हम लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग्स, इन टर्म्स ऑफ जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिकली मार्केट को एजुकेट करना है। जितना अच्छा मार्केट को एजुकेट करेंगे उतना अच्छे तरीके से हम ट्रांजेक्शन को बेसिकली हम लोग कंक्लूड कर सकेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल है, जो बंदा यहाँ पे रियल एस्टेट से मौजूद नहीं होगा शायद उसे बेसिक ट्रांसफर का प्रोसीजर का भी आइडिया नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी की ट्रांसफर लेनी है तो आप ट्रांसफर कैसे ले सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है।
ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, कोई ट्रांसफर लेना, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एक बेसिक नॉलेज सबके पास होना चाहिए। एजुकेशन एक मेन रोल प्ले करेगा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियल एस्टेट। जिस तरीके से हम लोगों ने, घराना ने एक साइज की, हम लोगों ने बेसिकली RE सर्टिफिकेशन डेवलप की विद नस्ट, अभी आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है इन रियल एस्टेट साइंस। ये सब चीजें बेसिकली आपको एजुकेट करेंगी आपके फ्यूचर के लिए। ये बेसिकली आपकी ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डेवलप करने के लिए असिस्ट करेंगी। हम एजेंट्स को इस टाइम पे, जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी एडवाइजर्स हैं, उनके पास जा जाके उनको एडवाइस करें कि आप एक लिस्टिंग को कैसे पब्लिश करते हैं, एक अच्छी लिस्टिंग क्या होती है। उनको कभी किसी ने ये डिफाइन ही नहीं किया कि एक अच्छी लिस्टिंग क्या होती है। आपको लोगों को इंटरेक्ट कैसे करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक लीड आती है, आप उसको कैसे इंटरेक्ट करें। अब जो छोटी सी एग्जांपल है, तो आपके पास एक लीड है, एक बंदा आपको कॉल करता है, आगे से उसे आप हाँ जी करेंगे तो जाहिर बात है वो इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। आप उसे अच्छे तरीके से ट्रेन, हमने कई जगहों पे एडवाइजर्स के साथ मिलके उनको ये ट्रेनिंग्स दी हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि उनके साथ हमने इन्वॉल्व होके ये काम किए हुए। हम लोगों ने कई लोग एडवाइजर्स को सजेस्ट किया कि आप काइंडली अपने बीच में और लीड्स के बीच में एक इंटरमीडिएट रखें जो उनको फिल्टर आउट करके दे सके। प्लस हम लोग लोगों को वैसे बेसिस कर रहे हैं। हाँ, लीड जनरेट होती हैं, लोग हमारे पास से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मार्केट की एवेल्युएशंस क्या है, वो भी हम लोग एसेस करें। बट अगेन वो डाटा बेस्ड होती है। एज यू नो कि हमारे पास जो स्पेसिफिक डाटा है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब लाइव ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल डाटा जैसे आप कहते हैं, हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अभी इसकी बेसिस की वजह से भी अभी रिसेंटली आपने एक डेवलपमेंट देखी जो बेसिकली आपकी DC वैल्यूज के अगेंस्ट, वो भी इसी की बेस पे डेवलप हुई है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक जो डाटा कलेक्ट किया है वो आपके डिफरेंट रियल एस्टेट पोर्टल से कलेक्ट किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किया है। अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगेंस्ट जो प्राइसिंग आ रही थी वो बेसिकली आस्किंग्स थी, नॉट ट्रांजैक्शन वैल्यूज। तो उसके बेसिस पे उन्होंने आस्किंग के ऊपर उनका आपका DC रेट नेट टू दोज आस्किंग्स लेके गए, जिसकी वजह से अभी ये आप जितनी भी रियल एस्टेट मार्केट में डेवलपमेंट वगैरह देख रहे हैं। बट फ्यूचर इज द ऑनलाइन। अगर आप फ्यूचर की बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, घराना जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियल एस्टेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, मतलब एजुकेटिंग दिस पीपल। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फैसल भाई ने यहाँ पे बात की प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है रियल एस्टेट में। सेकेंडली नॉलेज होना। हाफ हार्टेडली लोग यहाँ पे जितना कुछ सीख सकते हैं उसके बाद वो रियल एस्टेट में काम करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि उन लोगों के पास नॉलेज खुद रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को बेसिकली कंप्लीट नहीं कर पाते, और वो फिर एक बैड वर्ड ऑफ माउथ फैल जाता है फॉर रियल एस्टेट एडवाइजर्स एंड प्रॉपर्टी एजेंट्स। ये जो जितनी चीजें हैं ये बेसिकली सब कुछ मोल्ड डाउन होंगी टू घराना इंशाल्लाह इन द फ्यूचर एज ए, मतलब ऑनलाइन मार्केट प्लेस। आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी के एस्टिमेट्स ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी ऑन घराना। इवन आप किसी भी एस्पेक्ट पे बात करें, प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल, हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट कर रहे हैं वो एक सेट स्टैंडर्ड्स के अप्रूवल्स के बात कर रहे हैं। नॉट जस्ट कि कोई भी अगर हमें एंगेज करता है तो हम उन प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टल पे मार्केट करना शुरू करते हैं, कि कोई भी हमारा पोर्टल को यूज करते हुए किसी प्रोजेक्ट पे जाए और उसके बाद वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करे और उसकी कोई इन्वेस्टमेंट डूब जाए। बेसिकली एवरीवन जो हमारे पोर्टल पे आ रहा है हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वी पुटिंग दिस एफर्ट फॉर देम। हम उनके लिए इंफॉर्मेशन जितना सिंपल कर सकते हैं उन्हें प्रेजेंट करेंगे, और फ्यूचर में ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अगेंस्ट हम लोग ट्रांजैक्शंस भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। घराना जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है रियल एस्टेट की, इंशाल्लाह उस पर काम कर रहा है, और एजुकेशन विल बी द मेन की जहाँ से हम लोग इसको लेके चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर आतिफ, आपने काफी अच्छी डिस्कशन की। आपने हाईलाइट किया कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एजेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं और अथॉरिटीज हैं। और आपने ये भी हाईलाइट किया कि मोस्टली लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी की वो लोग नहीं कर पाते। तो इसमें आपने ये भी बताया कि जो ग्राना है वो लोगों को प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, उसकी एस्टिमेट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स और सारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स लोगों को प्रोवाइड करता है, ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। और बहुत अच्छा आप लोग ने इस पे हमें गाइड किया। अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर शेख निसार, प्लीज, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू वेरी मच जो है उमर साहब, और थैंक यू वेरी मच जनरल हारून साहब
फॉर इप्स के जी उन्होंने हमें एक तरह का प्लेटफॉर्म दिया कि इस प्लेटफॉर्म के तहत हम जो है मार्केट के अंदर रियल एस्टेट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट को जिस पे आतिफ साहब ने और फैसल साहब ने बात की, मैं उन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि बेसिकली इन्होंने कहा कि जी जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो फैसल साहब ने शुरू में बात की कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा इम्पैक्ट ला सकता है और उसकी इकोनॉमी को काफी हद तक बेहतर कर सकता है। जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे सामने जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे सामने पहले आती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो रियल एस्टेट का जो पोर्टफोलियो है वो पर एनम जो है वो तकरीबन $40 बिलियन का आता है। अच्छा, ये जो $40 बिलियन का है, जिसमें आपकी मेनली जो है तकरीबन 15 से 20 बिलियन, 15 to 20 बिलियन डॉलर आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है। अच्छा, ये जो सारी हमारी जो रिसर्च बेस जो है इस पे करती है कि जी जो 15 से 20 बिलियन डॉलर जो ओवरसीज पाकिस्तानी और जो लोकल पाकिस्तानी जो है यहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को हमने कैसे सिक्योर और कैसे उस इन्वेस्टमेंट को हमने उसमें लाना है, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस मार्केट में। और उस पर जिस तरह आतिफ साहब ने बात की कि मार्केट को हमने एजुकेट करना है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट को हमने एजुकेट करना है ताकि ये जो हमारा मल्टी बिलियन डॉलर सेक्टर है जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, ये विदाउट एजुकेटिंग द मार्केट ये पॉसिबल नहीं है। और इसकी एजुकेशन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारे सामने आता है कि जी हम मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है रियल एस्टेट के अंदर, हम उसको कैसे सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो इस पे जो प्रोप्शर डिजिटल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज की, यहाँ पे जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं इमारत की, तो वहां पे हमें एक मॉडल नजर आता है जिसको हम OAD कहते हैं, OADD। OAD का जो मॉडल है बेसिकली ये किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेल्यूर को फ्रॉम द बिगनिंग तय कर लेता है। क्योंकि जब भी आप बिलियन ऑफ रुपीज के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें ये चीज बड़ी जरूरी होती है समझने के लिए कि आया वो जो प्रोजेक्ट है उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे वो प्रोजेक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है, या वो क्लाइंट की जो, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि अराउंड जो हमारी 35 to 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो क्लाइंट पर एनम, वो क्लाइंट की डूबनी है, या वो क्लाइंट जो है वो एक ऐसी मार्केट में जाएगा, क्या वो पैसा कैपिटल ट्रैप तो नहीं हो जाएगा, जिसको अगर हम सिंपल अल्फाज में अगर समझने की कोशिश करें। तो वो जो OAD का मॉडल है उसके अंदर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसमें बेसिकली जो 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। OAD में जो तो पहला फैक्टर है वो हम देखते हैं कि आया जो प्रॉपर्टी है जिस भी प्रोजेक्ट पे, वो चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसकी जो ओनरशिप है, वो जो टाइटल है वो उसका कितना क्लियर है और उसकी सारी चीजें ठीक है कि नहीं। उसमें जो फिर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अप्रूवल्स। क्योंकि हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद के केस में प्रॉक्शर ने एक लास्ट मंथ ही एक स्टडी की कि जो तकरीबन 1000 प्लस समथिंग जो है ना हमारे पास कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं हाई रेंज, जिसमें जो 750 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इस वक्त अप्रूवल भी नहीं है मार्केट में, वो यानी कि या तो अंडर अप्रूवल है या उन्होंने भी अप्रूवल का प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर कल किसी भी वजह से उनका कोई अप्रूवल का जो मैकेनिज्म है वो अब नहीं हो पाता, तो वो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है हमारे जो आ रही है इकोनॉमी के सेक्टर में, वो पूरी की पूरी उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो डिमांड। ये जो हमारे यहाँ जितने भी रियल एस्टेट के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें जब तक हम डिमांड के फैक्टर को कंसीडर नहीं करते तो फिर जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक चीज हो तो जाती है। अब हमारे यहाँ इस्लामाबाद के केस में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ इस वक्त कमर्शियल जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में वो डेवलप हो चुका है। और क्योंकि जो कमर्शियल की जो डिमांड आती है वो रेजिडेंशियल से आती है, और रेजिडेंशियल अभी अगले 10 से 15 साल में वहां जाके पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स आना है और पॉपुलेट ने वहाँ उस एरिया ने अभी हैबिटेट होना है नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में, और वहां पे हमने अभी कमर्शियल इस वक्त डेवलप कर लिए। तो वो इस पूरी फिलोसफी को, और जो लास्ट इसका OAD का मॉडल है जिसपे हम बड़ा इमारत ग्रुप और प्रॉप्शर जो इस पे बड़ा काम करती है कि वो है डिलीवरी का। तो वो एक टाइमली डिलीवरी और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ हम चीज़ों को डिलीवर करना। तो ये जो बात की फैसल साहब ने और आतिफ साहब ने कि जी मार्केट को एजुकेट करना है,
तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम मार्केट के अंदर अपनी जो भी हमारे जितने भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, हम उन तमाम इन्वेस्टमेंट को अपने स्क्वाड जो है ओनरशिप, अप्रूवल, डिमांड जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और फिर जो डिलीवरी, जब हम इन 4 चीजों को हम देखेंगे तो हमें बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि जी किसी भी प्रोजेक्ट की या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है, जो जैसे मैंने जिक्र किया फिर, क्योंकि तकरीबन जो हमारी 15 से 20 US बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पर एनम, दिस इज द ह्यूज अमाउंट। और जिसका एक और स्टेट बैंक की स्टडी से हमने इस पर रिसर्च की कि जिसमें हमें ये बात सामने आई कि मोस्टली इसमें जो है ना वो कैपिटल ट्रैप है। तो इस वक्त एक और मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर दूं, 6500 के करीब जो हमारे 3 बड़े अर्बन सिटीज हैं पाकिस्तान के, जिसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इन 3 सिटीज के अंदर तकरीबन 6500 छोटी और बड़ी सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज की मैं बात कर रहा हूँ। उन 6500 सोसाइटीज में जो उनकी लैंड ओनरशिप जो ओआरड का मॉडल है, अगर हम उस पर उनको असेस करें तो 1500 से 1600 सोसाइटीज हैं अराउंड, जिनके वो चारों प्रोसेस जो हैं वो जिन पे वो ओआरड के मॉडल पे वो उतरती हैं। बाकी जो तकरीबन 4000 के करीब हाउसिंग स्कीम्स ऐसी हैं जो इस वक्त या तो अनअप्रूव्ड है या अंडर प्रोसेस है। तो ये एक हमें देखने की जरूरत है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसके साथ, जैसे फैसल साहब ने कहा, 60 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज है, और अगर हम इसको मजीद सब अलाइड इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करें तो वो 250 एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनती। तो वो 250 इंडस्ट्रीज के साथ एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और उसके अंदर जो हमारे अप्रूवल्स और डिमांड का जो फैक्टर है वो हम कंसीडर ही नहीं करते। तो बेसिकली प्रॉपश्योर जो है वो इसके अंदर ये सपोर्ट देता है कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमारी जो बुनियादी तौर पर सर्विसेज हैं उसमें अंदर एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, जो इंशाल्लाह सून जो है वो मार्केट के अंदर आने जा रही है। तो जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन है, ये बेसिकली जैसे आतिफ साहब ने कहा कि हमने क्लाइंट को एजुकेट करना है। उसके अंदर जो कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो रियल एस्टेट एजेंट के हैं, या रियल एस्टेट एडवाइजर के हैं, रियल एस्टेट मैनेजर के, और कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो क्लाइंट को ये बताते हैं कि आया जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो कितनी सेफ एंड सिक्योर है, और उसके अंदर आपका जो ट्रांजिशन के बाद उसके, जैसे कहा कि जी उसमें उसका जो लीगल कंपोनेंट है, उसके अंदर जो बाकी सारी चीजें, वो आपको कितना उस सिक्योरिटी का वो देता है। क्योंकि जो आपने हमने जो इस, जी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो वो जो हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने ये देखने को मिलती है कि एक बंदे ने अपनी जिंदगी में जो उसकी पूरा जमा पूंजी होती है, एक मैं मिडिल इनकम क्लास की अगर बात करूं, मिडिल इनकम की, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोशिश ये होती है कि वो एक अपार्टमेंट या वो एक घर बना ले। और वो भी अगर हम ये देखें कि 80% जो लोग हैं, अभी एक रिसर्च की अपना DC इस्लामाबाद के अंदर ये ऑनलाइन जो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर के जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई, उसमें ये आया कि जितनी भी रिक्वेस्ट आई फर्स्ट 2 वीक्स में, उसमें से 80% जो लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसमें भी यही आया कि जी वो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो या तो अनअप्रूव्ड एरिया में, या जो उनको कहा गया है कि जी हम आपको इस्लामाबाद में ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो एक्चुअली इस्लामाबाद में नहीं थी, वो इस्लामाबाद से बाहर थी, उसको इस्लामाबाद का नाम देके, मतलब एक मिसगाइड करके और लोगों को साथ धोखा दे होती है। तो इसके अंदर जो प्रॉपश्योर है वो बेसिकली लोगों को एक रियल एस्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो है हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये जो पूरा वो है कि जी हमने इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ट्रांसपेरेंसी होती है। तो मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा विजिबिलिटी होगी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, और उसके अंदर जो मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जो हमारा डिमांड का फैक्टर है वो बेसिकली मार्केट के ऊपर जाने को या नीचे जाने को तय करता है। तो ये सारी 3-4 फैक्टर्स को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें ये बुनियादी तौर पे समझ आती है कि ये सेक्टर किस तरह जो है इस मार्केट को ऊपर लेके जाता है। बाकी प्रॉपश्योर को जो अगर मैं बात करूं तो प्रॉपश्योर इसके अलावा जो है वो फिजिबिलिटीज को देखता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी एक कंप्लीट डिटेल फिजिबिलिटी, ताकि जब हम मार्केट में जाएं तो हमें पता हो कि उसके जो कितने फाइनेंशियल जो अपना उसका इम्पैक्ट क्या आना है, उसका जो लीगल इम्पैक्ट क्या आना है, उसकी टेक्निकलिटीज को हमने कैसे इंश्योर करना है, ताकि क्लाइंट जो है मार्केट के अंदर उसको हर तरह से उसको सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करें। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू मिस्टर फैसल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें शेयर किए। सो आपने बताया कि पर एनम $40 बिलियन पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें से 15 से 20 ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं और बाकी लोकल। तो सबका बेसिकली यही होता मसला होता है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी होती है। और आई एम वेरी इंटरेस्टेड जो आपने ऑड मॉडल का डिस्कस किया, जिसमें आपने ओनरशिप, अप्रूवल, डिमांड और डिलीवरी की बात की। और आपने इसमें एम्फेसिस दिया कि जो डिमांड है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं, जबकि रेजिडेंशियल जो होती है एरिया वो उसकी डिमांड को डिसाइड करता है। तो Exactly. आपने प्रॉपशोर की बात की कि प्रॉपशोर डिजिटल सॉल्यूशंस जो है वो फिजिबिलिटी और लोगों को वेरिफिकेशन करके दे रहा है प्रॉपर्टीज की, और दिस इज वेरी revolutionizing factor for the real estate of Pakistan. Thank you, sir. Now I would like to call Ms. Shaheen Arif for her topic, role of technovation in the real estate sector. Over to you, Ms. Shaheen. Assalamu alaikum. First of all, I'd like to thank yourself and the IPS board for inviting me for the session here. I would like to support the topic by some of the slides that I've compiled. Sure. I'll simply share my screen here. So the role of technovation in real estate sector. First of all, it's important to understand what technovation really means in literal terms. So technovation is comprised of, as it's pretty obvious, technology and innovation. If I summarize it, it's basically ideas that help you build services, processes, or products and help you innovate through the use of technology. Now, how does technovation interact with real estate sector to bring about different services, products, or different processes in the market, or let's say in this case, the real estate market? I like to support these with some of the ideas that have compiled that have been serving as disruptive technologies in the real estate sector. First of all, it's real estate, CRMs, cloud services, and IoT. So we have different examples from all over the world of different CRMs that have been developed. Some of the most notable names are Zoho, Zillow, Bitrix24, Rightmove, and then again we have a CRM in-house in Grana.com, which we call ARMS. A lot of agents are they have started using it, and it has gone into a very powerful CRM. Similarly, for other real estate industries and for other real estate companies, they have developed CRMs that help support the real estate workflows and automate different processes. And this is how the technology is basically helping and supporting the entire real estate workflows. Similarly, the use of CRMs is highly dependent on different cloud services. For example, AWS, Azure, IBM, or cloud, Google Cloud, or Oracle. Then there is a different side of IoT that presents basically automation and surveillance and security of different processes that support the real estate sector, not just directly, but also indirectly, because it supports through sensors or through other IoT devices. It supports in creating a home automation service for the entire industry. Next, we have machine learning, AI, and big data. So these words are probably heard by a lot of us every single day, but we don't really know how these affect the real estate sector. In this case, big data simply means you have a lot of data that has been compiled over the past years, and there has been an archive of the data that is present, and then you build some sort of processes on top of it, and you try to compile the analytics from it, and then you base your decisions on the big data. So how big data helps is basically you have a huge chunk of data, let's say, and then you have different artificial intelligence modules or different artificial intelligence algorithms that are trying to differentiate between the data patterns and trends, and then it tells you what to do. Basically,
The problems that were mentioned in the previous talks by Mr. Atif and Mr. Faisal, they were problems relating to the real estate sector. So how AI and big data can help is basically they can automate those decision-making processes, and they can also support as a decision support systems. So next is the disruptive technologies, basically the AR, VR, and blockchain and 3D printing. How these disruptive technologies are helping is basically the importance has been come to light more recently in the COVID times that I will speak on later on as well. VR is basically virtual reality and AR is augmented reality. Virtual reality literally means that there is something that doesn't exist in the real world and you're virtually presented it to your customers. So how you can use this in the real estate sector, or how it's being used already in the real estate market, is that it presents a virtual building which is not present on ground, but it presents the picture to the end users and it gives them basically a virtual experience of the real estate that has yet to be built. And similarly for augmented reality, it can provide you, it is being used by different industries and different companies all over the world. They basically augment what isn't there with what already is there to give you a kind of a mesh or a mixed experience. Then again, blockchain, as we all know, that there is a huge boom of Bitcoin and other cryptocurrencies. So how they can play a role in kind of the payment modules or the financial structures, but they also come in and they can also, they have already been used in the world for real estate payments and transactions. And then again, we have 3D printing, which basically plays a role by creating infrastructure using material that isn't very costly and takes up much less time than it usually does. So next, we move on to the Uber effect in the real estate marketplaces. What is the Uber effect actually? Let's talk about that first. The Uber effect basically refers to the fact that before Uber existed, there wasn't any such ride-hailing apps or ride-hailing sector or industry in place. And once the Uber was launched, there was a huge influx of the users that started using ride-hailing services. There was a lot of startups or small, medium businesses that started creating similar apps. And then everyone shifted towards using Uber as their mode of convenience rather than using any other service. So Uber effect literally refers to the fact that once such a platform did not exist before, so no one knew the essence of it or no one knew the importance of it. But once it started coming in, everyone else started realizing how important it is to have such a platform. And the same Uber effect happens in the real estate sector, that once when we weren't using the technology to support our real estate workflows, we weren't as aware of the benefits of it as we are now. And we have been using technology and technovation to support our decisions, as well as to plan further ahead in the future of how the real estate market will grow. And lastly, I would like to talk about the tech adoption during the post-COVID, during COVID and post-COVID time. Basically, the same pattern that we observed for the e-commerce industry or other industries, that once there was this pandemic and there was this whole situation where we weren't able to physically move around and see the places, that's where the technovation played its most important role. Now, people weren't, they were interested in, let's say, investing in real estate, in buying and selling of their property. All of that was still happening, but how were they supposed to communicate with each other, or how were they supposed to see basically the different real estate properties that they wanted to buy or they wanted to sell? So this is where the technovation played its most important role, that people could actually virtually see wherever the property existed, and they could virtually verify or have now have services like Mr. Atif mentioned in his talk, that there is a sense of geotagging that we do in our listings. So that basically verifies whether a listing exists in the real world or not. So that also helps the end users identify virtually
without having to visit in the real world where the property exists. So this is how the technovation or the tech adoption has happened during COVID, and post COVID there's an expectation of a huge tech revolution to come in the real estate sector, just because of the fact that this pandemic time has made us realize the importance of not just technovation, but also because the revolution that it brings with us, and the importance of the fact that once we started using technology for our processes, it has sped up. It has basically sped up a lot of our processes in the real world. Thank you. Thank you, Shaheen, for that discussion. And you mentioned a lot of technologies like big data, analytics, VR, AR, blockchain, 3D printing. So I'm just curious about the role of Innovation Lab in Grana, and as to how you guys are implementing some of these technologies in the real estate sector. And generally, we have seen that the real estate sector is slow in the adoption and use of these technologies. So are you guys like doing anything in terms of making this adoption a bit at a faster pace? So would like to know your views on that. Sure. Thank you for your questions. So on the first question, what are we doing in the Innovation Lab currently? We're working on some very interesting things. I'll mention some of those here. As Atif has already mentioned, some of the models that we have developed for property valuations. So those are built on big data and AI. And it's not like for the end user, it may be something as simple as, let's say, the property valuations in G11 area or G11.1 area is XYZ, but for the Innovation Lab, it's basically based on a big data source, and then an AI is built on it, which is trained, and then the analysis and the output is served as a product to the end user. So this is one of the products that has come up from the Innovation Lab, and there are several others. There is automation of different processes that are used within the organization, within the CRMs that we use. And those automation tools basically help us identify where the roadblocks are, and then we can simply automate those steps without having any user perform those steps manually. For example, there are many mundane tasks like form entries or entering the same data, let's say, again and again. So we have reduced that by connecting all the databases with each other, and then introducing AI to predict where the information would come in and what information would we write on that platform. So that is one of the things. And then we have this geotagging aspect to it, which has brought which is, I would say that it is innovation in the sense that it has not been used in the real estate sector before in Pakistan, at least. As for your second question, so basically, once we the role of Innovation Lab in the real estate sector is such that it not only creates the innovation in itself, but it also tries to educate others around us, because we do not hide whatever we are building. We kind of present it, or we share it with others that these are the things that we're working on. And then again, we have this real estate science courses in NUST University, that where we go and share our experiences, that this is what we have built, and these are the things that we have refined at our end, and these are the things that could help the end users. So basically, we're not only building those things at our end, we're also sharing our experiences. Ms. Shaheen, your voice, we can't hear you. Well, that was very interesting to know. Quite a lot of technologies being implemented in the real estate sector, and I'm also aware of virtual reality being used in real estate marketing recently, and that is something that will surely revolutionize the real estate sector of Pakistan. So moving on, we have a few questions which we received online. Aline says that real estate thrives on proactive marketing. The marketing and sales people tend to exaggerate, and the expectations are much higher than the product that is delivered. So
would you like to comment on that? I would like Mr. Atif, would you like to comment on that? Actually, ma'am is right. Normally यही होता है. There's a lot of exaggeration in advertisements and marketing campaigns, each and everything. But I would say that the people who are investing in these projects, उन लोगों को एक specific set of information जरूर हमें convey करनी चाहिए, how to verify some steps. जैसे कि एक complete process है, 14 steps का approvals का process है. It's on our pages, it's on our website. They can go there and check. उस सब चीज उसमें बड़ी clarity से mention है. तो आप extraordinary advertisements को देख के या extraordinary marketing को देख के attract ना हो, उन 14 बेसिक पॉइंट्स को फॉलो अप करें. मैं शेयर भी कर देता हूँ. उन 14 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें. कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोकेशन बेस्ड, कुछ लोग करते हैं फॉर सेइंग. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी एग्जांपल देता हूँ. देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्टर इन इस्लामाबाद, इट्स नोन एज C16. ठीक है. वहाँ पे जो कनाल की प्लॉट की प्राइसिंग डेवलप हुई है वो 38 लाख से लेके 44 लाख तक हुई है. ठीक है. फिर एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुई जिसके बाद वो 1 करोड़ तक चली गई एक कनाल के प्लॉट. फिर उसके बाद मारगला रोड की कुछ डेवलपमेंट शुरू हुई तो वो 2 करोड़ तक चले गए वो प्लॉट. अब वो तकरीबन 2-2.25 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लॉट एंड ऑल सारा कुछ. उसके बेस पे उसके अगेंस्ट कोई मार्केटिंग नहीं हुई, सिंगल एक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लगी, क्योंकि वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सेक्टर है, उसकी बेसिक अलॉटमेंट्स हैं एंड दैट्स इट. किसी ने कोई बैनर नहीं लगाया, किसी ने कोई मार्केटिंग नहीं की, बट उसके रेट्स ऊपर गए. तो आई बिलीव कि किसी तरीके से वो अट्रैक्ट करते हैं, बट इट्स रिलेटेड टू द प्राइमरी मार्केट, नॉट द सेकेंडरी मार्केट. वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज मार्केट्स एज वेल. कि प्राइमरी मार्केट के केस में बड़ी एग्रेसिव मार्केट्स होती हैं, सेकेंडरी मार्केट के केस में इतनी एग्रेसिव मार्केट नहीं होती, बड़ी बेसिक सी मार्केटिंग होती है. प्राइमरी के केस के अपने आप को अगर आप सेव करना चाहते हैं और मार्केटिंग में नहीं आना चाहते, उनकी स्ट्रेटजीज में आप ट्रैक नहीं होना चाहते, तो बेसिक सेट ऑफ रूल्स है दोस 14 पॉइंट्स. इफ यू फॉलो दोस 14 पॉइंट्स, आई बिलीव आप कभी भी कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते. Thank you, Mr. Atif. We have this other question. उमर इजाजत दे तो मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ. Sure. You talked about online marketplace. तो अगर हम ऑनलाइन मार्केटप्लेस मैंने एक जैकेट ऑर्डर करनी है, मैं उसकी सिलेक्शन करता हूँ कि मुझे ये चाहिए, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. आई प्लेस द ऑर्डर, आई सेंड देम द मनी, दे डिलीवर द जैकेट. तो मैं अगर हाउ फार आर वी फ्रॉम दिस अचीविंग दिस स्टेटस ऑफ ऑनलाइन मार्केट, दैट मैंने ऑनलाइन राब्ता किया, आपने मुझे ऑप्शन दिया, प्राइसेस मैंने एवेल्युएट की, आपको मैंने कहा ये मुझे आप बेच दें, मैंने आपने मुझे उसका एरियल व्यू भी दे दिया, उसके एट्रीब्यूट्स भी बता दिए, और उसके बाद मैंने कहा ये मैंने पैसे भेज दिए और मेरी ऑनलाइन ही उसकी ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी. मैं घर बैठा हूँ, आई एम इन लंदन, आई एम इन बर्मिंघम, आई एम एनीवेयर. मुझे ये बताइए हाउ फार आर वी फ्रॉम दिस स्टेटस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग? जी सर, जहां तक आपने बात की ना, बेसिकली प्रोसेस में आइडेंटिफाई कर, एक स्पेसिफिक बंदा है, उसने ऑनलाइन वेबसाइट पे है, उसने एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, उसने कहा मुझे ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए टू बाय. ठीक है सर. जैसे ही उसने वो क्लिक किया, उसकी नोटिफिकेशन चली जाती है 2 एंड्स पे. एक स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक एजेंट जिसने ये प्रॉपर्टी लगाई हुई होती है. दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल वो वांटेड पे अपनी रिक्वेस्ट इनपुट करता है, वो हमारी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है जिसे हम आयरा कहते हैं. वो उस लीड को वेट करती है और फर्दर वो अपने एरिया मैनेजर को साइन कर देती है. एरिया मैनेजर उसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक सेट की जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पुट इन कर देती है. जो आपका केस है कि आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, आप एक लिस्टिंग देखते हैं, आपको पसंद आ जाती है, आप रिक्वेस्ट पुट इन कर देते हैं. बेसिकली सर, हम उस पॉइंट पे आके अभी रुक जाते हैं जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला एलिमेंट हो, क्योंकि या आपको किसी को अथॉरिटी देनी पड़ेगी टू मैनेज दोज ट्रांजैक्शन ऑन योर बिहाफ, या आपको पर्सनली खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक या ई सिग्नेचर्स की अभी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं इन पाकिस्तानी लॉ. वो बेसिकली हमारे एंड पे नहीं है, वो बेसिकली जिस तरह ये लॉ डेवलप होगा इलेक्ट्रॉनिकली, वो उस बेनिफिट में हम लोग और असेस कर सकेंगे. बट इस केस में जो एंड वाला पार्ट है, दो एंड पार्ट्स, एक जो आपका एग्रीमेंट टू सेल वाला पार्ट है सर, दूसरा वो ट्रांसफर वाला पार्ट है.
उसमें या आपको या आपकी एनी पर्सन जिसको आपने वो अथॉरिटी दी होगी उसको आना जरूरी पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे आके हम लोग रिस्ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि जो लॉज हैं वो अभी इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी सिग्नेचर्स को डिक्टेट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। अदर देन दैट वी आर हियर, वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन। लोग प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल से, एजेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज ले भी रहे हैं। बट वो जो ट्रांजैक्शन वाला पार्ट है वो भी मैनुअली है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई सिग्नेचर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। अच्छा, दूसरा एक मेरे ज़हन में एक पॉइंट आया था कि जब मैंने कांटेक्ट कर लिया तो मैं पार्डन मी फॉर द नाइविटी ऑफ माय क्वेश्चन, मैं एक यूजर के तौर पे सोच रहा हूँ कि क्या फैसिलिटी है वीडियो कॉल की, कि मैं लंदन में बैठा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, कराची हूँ, मुल्क में हूँ, तो मैं आपसे वीडियो कॉल करके फेस टू फेस डिस्कस कर लूँ? सर एवरी पॉसिबिलिटी उसमें है। आप ईमेल्स के थ्रू लोग भी कोऑर्डिनेट करते हैं। हम बेसिकली कंफर्ट लेवल देखते हैं क्लाइंट का। हम नॉर्मली ईमेल्स के थ्रू भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जूम मीटिंग्स भी हमारी होती हैं। मैं सुबह 9:30 बजे एक जूम मीटिंग अटेंड करके आया हूँ क्लाइंट के साथ, उसने मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, हम लोग इंटरेक्टिव। आपको पता है अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट हो तो वो ट्रस्ट लेवल कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको असेस करने के लिए हमारे पास हर स्टेप पे एक बंदा असाइंड है आपके विजिट्स अलाइन करने के लिए। आप जूम मीटिंग में अगर फॉर एग्जांपल आना चाहते हैं, हमारे पास वो सोर्स भी है, व्हाट्सएप का हमारे पास सोर्स है। नॉर्मली लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं इवन अब्रॉड, बट जूम इज मोर प्रोफेशनल। मैं पर्सनली जूम रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी टू मेंटेन एंड सब कुछ है, बट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द क्लाइंट। बहुत अच्छा, आई रियली वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है फैसल आपसे, मैं फॉलो नहीं कर सका, आपने कुछ एक बताया था साइकिल कि पहले प्रॉपर्टी आती है, उसको कैटलॉगिंग करते हैं और उसको फिर फाइनली पब्लिश होती है। टू मी दैट वाज वेरी इंप्रेसिव कि आप किस तरीके से एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वुड यू बी एबल टू आंसर, मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बेसिकली ये पोर्टल के एंड पे जो ऑनलाइन पोर्टल है, ये आतिफ भाई लोग ये चीज देखते हैं, इसका एक प्रॉपर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे मेरा या आरी एजेंट कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ से घराना पोर्टल पे लगाए और ये उसको पब्लिश कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये उसको वेरीफाई करेंगे, ये उसका कंपैरेटिव जो वहाँ पे रिसर्च है, जो इनके अपने वहाँ पे एडवाइजर्स हैं, वहाँ पे इनके जो जोनल्स हैं, सारी जो इनकी हायरार्की है, ये उसको देखेंगे, उसकी वैल्यूज को असेस करेंगे, क्या ये जिस बंदे ने जिस वैल्यू पे ये प्लॉट या ये घर लगाया है, ये वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है या नहीं है। तो पहले तो उसको वहां पे फिल्टर करेंगे, फिर ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये फेक प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये G11 की प्रॉपर्टी और नीचे एड्रेस में DHA2 की प्रॉपर्टी ऐड हुई है। क्योंकि नॉर्मली जो दूसरे पोर्टल्स हैं वहां पे ये होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए बड़े खूबसूरत फैंसी घरों की फ्रंट एलिवेशन लगा ली जाती है ताकि लोग क्लिक करके कॉल करें और वो विजिट पे आ जाए। जो ही वो लोग विजिट्स पे आते हैं तो वो आगे से एजेंट्स कह देते हैं कि नहीं जी वो प्रॉपर्टी तो सेल होगी, आए हम आपको दूसरी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में घराना में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये इसको वेरीफाई करते हैं हर एंगल्स, उसकी प्राइस वाइज भी उसको वेरीफाई करते हैं, प्रॉपर्टी को ऑन ग्राउंड लोकेशन पे जाके वेरीफाई करते हैं कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। फिर इनकी कैटलॉगर है कि अगर आरी एडवाइजर है, उसने उसकी स्पेसिफिकेशन सही तरीके से नहीं लिख सका, तो ये उस आरी एडवाइजर को कॉल करेंगी इनकी कैटलॉगर्स और उससे प्रॉपर डिटेल मांगेंगी और उसको बड़ा अच्छे तरीके से वहां पे लिखेंगी ताकि एंड यूजर को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, जो कि शायद लैग करते हैं आरी एडवाइजर्स अच्छे तरीके से उसको वहां पे मेंशन नहीं करते उसकी तमाम डायमेंशंस को। तो वो इनकी कैटलॉगर्स हैं जो वो हेल्प करती हैं, हर आरी एडवाइजर जो मार्केट में लोग बैठे हैं या एजेंट्स हैं उनको ये वो हेल्प करती हैं कि उनको वो एक अच्छा डिसेंट वे में प्रेजेंट करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। इफ आई एम जी, कंक्लूजन ये निकला कि फॉर एग्जांपल आई ओन अ प्रॉपर्टी व्हिच इज अंडर लिटिगेशन या उसमें कोई उसमें कुछ खामी है, तो मैं वो आके घराना या एजेंसी 21 में नहीं बेच सकता। नहीं, आप हमेशा जेन्युइन प्रॉपर्टी बेचते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और माशाल्लाह दैट इज वन पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें सर ऑफशोर भी हमें हेल्प करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पे हमें अगर आइडिया नहीं है, लेट्स सपोज अगर हमें आइडिया नहीं है कि ये जो पीस ऑफ लैंड है, जैसे ओपन लैंड में होता है, ये पीस ऑफ लैंड अगर मेरा परचेजर बाय करना चाह रहे हैं और सेलर इसको सेल कर रहे हैं,
लेकिन वो अगर किसी बायलॉज के अंडर नहीं है और रूरल एरिया में है तो उसको अगर मैंने वेरीफाई करवाना है तो वो प्रॉपश्योर हमें उसमें हेल्प करता है कि ये पीस ऑफ लैंड जो है ये इसमें कोई लिटिगेशन तो नहीं है, इसके अप्रूवल्स यहाँ पे कमर्शियल के अप्रूवल्स हैं और आप रेजिडेंशियल के लिए बाय कर रहे हैं, या रेजिडेंशियल के अप्रूवल्स हैं और आप कमर्शियल के लिए बाय कर रहे हैं, तो वो भी हमें एक पिक्चर क्लियर करता है प्रॉपश्योर के एंड से चीज हमें, कि हमें वहां से भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। That is very impressive. Okay, Umar, continue, please. So we have another interesting question. Says it has often been seen that real estate developers do not fulfill their commitments on time, and many people feel that their investments are stuck as debt capital. So how would you like to comment? And basically यहाँ पर कुछ values की बात आ जाती है कि लोग हमारे रियल एस्टेट डेवलपर्स के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते, और वो क्या चीज है जो क्या ऐसी वैल्यूज हैं जो होनी चाहिए मार्केट में. सो आई वुड लाइक फैसल साहब आप ही इस पे बात कर लें. जी बिल्कुल, इस पे प्रॉक्शोर से जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इस पे पहले डिस्कस किया है कि ऑड एक फॉर्मूला है जिसमें ऑनरशिप, अप्रूवल, डिमांड एंड डिलीवरी, ये एक बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये एक फॉर्मूला निकाला गया है इमारत की तरफ से. इस फॉर्मूले पे अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चलें या देखें तो वो स्टार्ट में ही आपको बता देगा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या इसके सक्सेस के क्या चांसेस हैं. अनफॉर्चुनेटली सारी की सारा ब्लेम जो है वो आरई एजेंट्स या आरई एडवाइजर्स या डेवलपर्स के ऊपर आ जाता है. इन्वेस्टर्स के ऊपर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया. मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर रेज करना चाहूंगा इनके रिबटल में, कि आप एक गाड़ी लेने के लिए जब जाते हैं तो आप उसके तो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आप मैकेनिक को साथ लेके जाते हैं कि इसको ठोक के देखो साइडों से कहीं से पेंट तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, इसका इंजन की क्या एफिशिएंसी है, हर एंगल से उस गाड़ी को चेक करते हैं, विच इज मेरे ख्याल में 6 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो लग्जरी कार्स यहाँ पे हमारे जो मिडिल में चल रही हैं वो 40 लाख तक की. लेकिन जो आपकी लाइफ सेविंग्स हैं, जो आपने सारी जिंदगी पैसा जोड़ा कि यार मैं एंड में एक पीस ऑफ माइंड के साथ मुझे एक इनकम आनी चाहिए, मेरा फ्लैट होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जाते हुए आप लोग उसको स्टडी नहीं करते कि जिस डेवलपर के साथ मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इस डेवलपर ने पहले डिलीवर क्या किया, या ये जिस जगह पे ये प्रॉपर्टी को लेके आ रहा है, ये जो भी ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे मॉल बना के दूंगा आपको, क्या उस मॉल की वहां पे डिमांड भी है या नहीं है, वहां पे इतनी पॉपुलेशन है कि वो उस डिमांड को पूरा कर सके वो मॉल, क्या वहां पे टेनेंट जो हैं वो इतने पैसे कमाएंगे कि वहां के जो है मंथली रेंट्स ऊपर जा सके. अगर मंथली रेंट ऊपर नहीं जाएंगे तो प्राइस वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी. मतलब ये इन्वेस्टर्स या लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है, या उनको भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम जिस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं उसका पहले ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लें. सारी देखें, एक बिजनेसमैन आया मार्केट में, उसको पता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन में से पैसे अच्छे बचेंगे, उसको एक पीस ऑफ लैंड मिली, उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और लोगों से कहा कि आए मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें. तो उसकी तो गलती है, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है मैं समझता हूँ कि मैं उनको ज्यादा ब्लेम करूंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्यों नहीं चेक किया कि क्या ये जो शख्स यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है प्रॉपर्टी, क्या इसने पहले भी कुछ डिलीवर किया है कि नहीं किया, या पहले इसके जो डिलीवर हुए हैं प्रोजेक्ट्स वो सक्सेसफुल हैं भी या नहीं. तो ये जो ऑड का फॉर्मूला जो मेरे प्रोफेसर वाले भाई ने बताया, अगर इसको लोग देख लें, ऑनरशिप, अप्रूवल्स, डिमांड एंड सप्लाई, कि जो पीस ऑफ लैंड है उसकी ऑनरशिप उस बंदे के नाम पे है, वहां पे अप्रूवल्स जो कि 12 अप्रूवल्स हैं जिसमें एविएशन का अप्रूवल है, एलओपीज हैं डिफरेंट, वो तमाम कंसर्निंग अथॉरिटीज से वो अप्रूवल उस बंदे के पास है कि वो जो प्रोजेक्ट वहां पे लेके आ रहा है वो अप्रूव भी हो सकता है कि नहीं, और क्या वहां पे उसकी डिमांड है उस प्रोजेक्ट, या वो डिलीवरी उसने दी हुई है पहले उससे पहले. ये 4 चीजें हैं, ये अगर लोग अंडरस्टैंड कर ले तो मेरे ख्याल में किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. मिस्टर आतिफ, आप योर हैंड वाज रेज्ड, प्लीज. असल में इसमें एक छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. फैसल भाई ने बाकी तो सारा चीजें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दी है. बेसिकली एक तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. आप कोई नॉर्मल चीज भी करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रॉपर वर्किंग करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको उसी तरीके से करना चाहिए. और दूसरा जो लेटनेस की बेसिस पे बात की है उसमें जो मल्टीपल चीजें हैं, उसमें मल्टीपल चीजें अलाइंड होती हैं.
डेवलपर्स का जो व्यू पॉइंट है, मतलब उन्हें बेसिकली ईज ऑफ वर्क नहीं प्रोवाइड की जाती, वो अपना काम अपने अप्रूवल्स पे लगे रहते हैं और उन्हें कंस्ट्रक्शन करने में कोई इशू नहीं होता। दूसरा प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डेवलपर्स की साइड लूंगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टाइमलाइंस। हम लोग टाइमलाइंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक प्रोजेक्ट कभी भी अगर मार्केट में आता है तो उसका एक प्री लॉन्च फेज होती है, फिर उसकी एक लॉन्च फेज होती है, उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन में चला जाता है। तो हम लोग मिक्स कर देते हैं प्री लॉन्च फेज को सबको मिला के, फिर हम डेवलपर को ब्लेम कर देते हैं कि उसे बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम ले लिया या इस तरह की कोई चीज। हत्ता कि अगर आप प्रॉपर्ली चीज को एनालाइज करें, जितना डेवलपर ज्यादा टाइम लेता है कंस्ट्रक्शन में तो उसको ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाती है। कंस्ट्रक्शन ऊपर जाने की वजह से जो उन्होंने बुकिंग की हुई है तकरीबन 2019 या 2018 की, वो डिलीवरी जो उन्होंने 2021 या 22 में देनी है, वो कॉस्ट इफेक्टिव उस तरीके से नहीं रहती। मतलब उनकी सारी फिजिबिलिटी आउट हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे सरिया एक डिफरेंट वैल्यू पे था, डिफरेंट वैल्यू पे। तो इसमें मैं थोड़ा सा डेवलपर्स की भी साइड लूंगा और थोड़ा सा ये भी इंसिस्ट करूंगा कि लोगों को एजुकेट। पर्सनली जितना भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है ना, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में या पे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक एलिमेंट है कि ये रेफरल बेस। उमर भाई किसी को जानते हैं तो आपने कहा जी आतिफ साहब है वो काम करते हैं, आपने मुझे रेफर कर दिया तो मैंने उनकी तो वो ट्रस्ट पे चल रही होते हैं, तो लोग चेक ही नहीं करते। फिर जब वो स्टक हो जाती है तो बीच वाला बंदा भी निकल जाता है, तो साइड वाला बंदा भी निकल जाता है, तो वो एलिमेंट फिर उस तरह कैपिटल ट्रैप होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं चेक करता, कोई डिफरेंट चीजों को एनालाइज नहीं करता। यहाँ पे मतलब किसी को बेसिक आइडिया भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो इस्लामाबाद में आपके पास CDA एक अथॉरिटी है, RDA है एक है, रावलपिंडी की डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर उसके बाद आपके पास DHA है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, फिर उसके बाद आप की जितनी भी चीजें वो सब क्या कहते हैं इन अथॉरिटीज के अंदर आती हैं, मातहत आती हैं। ठीक है, बहरिया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो CDA के अंडर आती है। लोगों को इन चीजों के बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, तो हमें बेसिकली वही अगेन एजुकेशन वाला पार्ट जितना हम एम्फसाइज कर सकेंगे इन लोगों पे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। प्लस थोड़ा सा हमें डेवलपर्स के लिए भी उनकी साइड लेनी चाहिए कि वो पूरी कोशिश उनकी जितनी जल्दी डिलीवर होता है, वो उनका बेसिकली कोर पर्पस ये होता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर करें और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मूव आउट करें, तो मेक मनी बेसिकली जिस तरीके से वो कर सकते। Thank you, Mr. Atif, for that explanation. We have another question. It says that many people are not acquainted with modern technologies and their role in the real estate sector. So what are the prospects that these technologies are going to disrupt this real estate sector of Pakistan? Ms. Shaheen, I would like you to answer that question. Acha, basically, it is somewhat similar to the question that we addressed earlier. लोगों को टेक्नोलॉजीज का पता नहीं होता, yes, that's an understandable argument. लेकिन जैसे जैसे अभी हमारे पास टाइम्स चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैड द पेंडेमिक एंड वी somehow learned how to shift or mold our ways into different processes or different ways of getting things done. For example, we started using online services, ride-hailing services at a certain point where we couldn't have travel services involved in this capacity, and then later on we moved to we started to use different online platforms, for example e-commerce platforms, or we have the services like Airlift or Grocer app or things like that. So similarly, the real estate sector has also started evolving, and there are different technologies that we are still learning at our end on how to use these to our benefit. So it's not just the others out there in the different sectors who are unaware of these technologies or the benefit. Basically, the gap exists not in the fact that we're unaware of the technologies themselves, but how we can bridge the gap between the real estate sector and its processes and its workflows and the technology that is already present with us. Because technology is one side that is consistently growing. It's not going to be like it's going to reach a point where it cannot grow any further. But we need to learn how to bridge that gap and understand how this technology can serve the purpose that we have for us in its best capacity. उमर, ये शेख निसार साहब से भी views ले लें. Sir, we have this last question for Mr. Sheikh Nisar. Question व्यू ले लो, इस क्वेश्चन पे भी व्यू ले लें. ये जो अभी आपने पहला क्वेश्चन है इसका आंसर एंड नेक्स्ट आल्सो. Okay, sir. So, Mr. Sheikh,
So I'll ask the last question as well, and you can answer both. So an investor would like to have the perception that their investment is secure. And since you mentioned that you guys are working with data and that odd model you discussed, so how do you ensure that your investors feel safe with their investments? इसमें थैंक यू वेरी मच उमर साहब। जैसे पहले इस एक डिस्कशन हो रही थी जिस पे आतिफ साहब ने और फैसल नकवी साहब ने बात की कि जी उस पे मैं पहले उस पे एक कमेंट ऐड कर दूंगा, फिर मैं इसी पे इस क्वेश्चन पे आता हूँ। नॉर्मली जब हम डिलीवरी की बात करते हैं ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो डिलीवरी वाला क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल जो फैक्टर्स हैं कि डेवलपर का प्रोफाइल देखना चाहिए और हमने बाकी सारी चीजों को कंसीडर करना है कि जी वो जो सारी, और उसमें जो डेवलपर के पार्ट पे यानी कि बीइंग ए डेवलपर जिसकी हम प्रॉपर्टी जो है सेल आउट कर रहे हैं या हम जिसको सेफ गार्ड कर रहे हैं, उसके पार्ट पे एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिलीवरी के अंदर जब सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं जब हमारे अप्रूवल्स जो होते हैं ना, जो अप्रूवल्स का मैकेनिज्म होता है हम उसको फॉलो नहीं करते। जब हम अप्रूवल के मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते तो वहां पे फिर डिफरेंट एजेंसीज आती हैं जो उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी के उसको इंश्योर करने में हिंड्रेंस पैदा करती है। तो अप्रूवल का जो कंपोनेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमने इस चीज को इंश्योर करना है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 100% जो उनकी कंप्लायंस है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज या कंसर्न अथॉरिटी, वो 100% अथॉरिटी होगी तो डिलीवरी जो है वो आपकी टाइमली डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होगी। तो एक तो मैं इस पे बात करूंगा। बाकी जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि क्लाइंट को किस तरह ये सिक्योरिटी देनी है, उसको ये इंश्योर करना है कि जी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। तो इसमें अब जो बुनियादी तौर पे देखने वाली चीज है कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की आइदर इट इज अ इंडिविजुअल प्लॉट अपार्टमेंट या हम खरीदते हैं या कोई घर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हाउस में जाते हैं, तो उसमें ये देखना ये होता है कि जी वो जो उस प्रॉपर्टी जब हम खरीद रहे हैं तो उसका नॉर्मली क्लाइंट को जो डेवलपर सेल आउट कर रहा होता है या जो रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव जो उसको प्रॉपर्टी बेच रहा होता है वो उसको एक मार्केटिंग प्लान दिखा रहा होता है। तो हमने क्लाइंट को ये एजुकेट करना है कि वो जब भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाए किसी भी सोसाइटी में, तो वो उससे पूछें कि आया ये जो सोसाइटी है ये जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे वो उसका लेआउट प्लान हम एक टर्म यूज करते हैं कि उसका जो नक्शा है सोसाइटी का वो अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड। अच्छा वो अप्रूव्ड है तो वो एक्चुअली होता ये है कि वो अप्रूव्ड सोसाइटी होती है, वो लेट से 50 केनाल पे या 100 केनाल पे 200 केनाल पे सोसाइटी अप्रूव्ड है, पर क्योंकि डेवलपर ने कहा होता है कि जी मैंने ये 400 केनाल बाकी लैंड एक्वायर करनी है, तो वो 200 केनाल पे वो अप्रूव करा के और जो बेच रहा होता है मार्केट में जो सेलिंग चल रही होती है वो 400-800 केनाल एकड़ में वो उस पर चल रही होती है। तो क्लाइंट को इस चीज को इंश्योर करना है कि जो अप्रूव्ड लेआउट प्लान है कंसर्न अथॉरिटी से और उसके अंदर वो प्लॉट एग्जिस्ट करता हो। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि कराची में एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं चाइना कटिंग, के नक्शे के अंदर वो अप्रूव प्लॉट था पार्क का या किसी पब्लिक बिल्डिंग का, पर डेवलपर ने क्या किया उसको भी कटिंग करके और उसको भी उसने घर बना के या प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट करके बेच दिया। या इसमें हमारे यहाँ होता है जब भी कोई सोसाइटी में ये, इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो जो देखने की जरूरत है कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है तो उसको देखना है कि जी आपका क्या प्लॉट, डेवलपर का प्लॉट उस अथॉरिटी ने मॉर्गेज तो नहीं कर दिया कि जी जब तक आप ये कंसर्न डेवलपमेंट नहीं करते तो आपका प्लॉट वो 5 to 10% जो सोसाइटी के प्लॉट होते हैं वो मॉर्गेज हो जाते हैं। तो इस सारी चीज को इंश्योर करने के लिए प्रॉपश्योर ने फ्रॉम एक 2018 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया और इस इनिशिएटिव को करने के लिए अराउंड 100+ ग्रेजुएट टाउन प्लानर्स रजिस्टर्ड विद द PKTP, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स, उनके साथ मिलकर एक इनिशिएटिव किया कि पाकिस्तान के अंदर जो 4.5 मिलियन 35 सिटीज के अंदर 35 जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर 4.5 मिलियन प्रॉपर्टीज को डिजिटाइज किया कि जी ये 4.5 मिलियन प्रॉपर्टीज के अंदर आप ये चीज इंश्योर कर सकते हैं खरीदने से पहले कि आया ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी जो है वो एज पर द एक्चुअल अप्रूव प्लान कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये एक बेसिकली इसका प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप इस चीज को वेरीफाई या इंश्योर कर सकते हैं। Yeah, that's very interesting, Sheikh Nisar. And I would just like you to comment on the prospects of technology disrupting the real estate sector. Like you mentioned this geotagging
जी एग्जैक्टली जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है ना, एक इसमें हम अक्सर जब बात करते हैं कि हमारे सामने जैसे जनरल हारून साहब ने भी कहा कि जी हम कितना दूर हैं कि हम लंदन में बैठे हों, एडनबर्ग में बैठे हों, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों और हम उस प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन कर लें विदाउट हमें उसके लिए जाने, उसमें उसके लिए बीच में पेमेंट गेटवेज का कोई मैकेनिज्म हो, कोई जो लीगल सॉलिसिएटर्स होते हैं वो मौजूद हो और वो सारी चीजों को हम देख के जो है वो हमें जानना ना पड़े। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी को अल्टीमेटली उसी तरफ जाना चाहिए और ये दुनिया के अंदर ये निज़ाम किसी ना किसी दर्जे में बेहतर शक्ल में मौजूद है। जो बेसिकली जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज है प्रॉपर्टीज के अंदर, वो एक्चुअली जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उस पर भी इसने काफी ज्यादा इनिशिएटिव किए कि हमने पूरे के पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना है। अच्छा, वह डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के जरिए हम क्या चीज को लाते हैं, वो अल्टीमेटली जो शुरू में मैंने बात की कि इस सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मार्केट के अंदर लोगों को ये ट्रस्ट देना है और वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिजिटलाइज रिकॉर्ड के थ्रू आएगी। अगर हम सर्वे करें तो लास्ट हमारा जो मैनुअल टेक्नोलॉजी के जरिए जो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल थोड़ा सा दो मिनट ले लूंगा मजीद, कि जो हमारे लास्ट टोपोग्राफिकल सर्वे हुए वो 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुए। उसके बाद हमारे यहाँ जो वो हश्तजारी निज़ाम जो पूरा एक सिस्टम बना जिसके अंदर वो फिर पटवार खाने और वो सारी वो जो बनी, उसके बाद 1915 के बाद हमारे यहाँ कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेनेंस का कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। तो आफ्टर द 1951 ये इमारत ग्रुप और क्रॉपशर के उस पर ये जाता है कि जी ये हमने इस रिकॉर्ड को ये हमने एक तरह से इनिशिएटिव लिया कि अब क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजीज के जरिए आपने जिस चीज को ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, तो उसके जरिए आपने इसको जरूरत है कि जी अब आप पूरे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो अगर आप अभी जाएं सरकारी दफातर के अंदर तो वो बंद अलमारियों में पुरानी लकड़ी के और मिट्टी के उसमें जो वहां से ये जो रिकॉर्ड्स निकाल के इनको डिजिटलाइज करने की जरूरत है, ताकि उसके जरिए किसी भी इन्वेस्टर को जब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको सिंगल क्लिक पे उसके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि जी वो देख सके कि आया वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो रेजिडेंशियल के पर्पस के लिए है या वो किसी और पर्पस के लिए तो नहीं है, या वो पार्क की जमीन तो नहीं, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जाए। Wonderful, wonderful. Thank you, Mr. Sheikh Nisar, for that insight, wonderful insight. So, as we end our webinar, I would just like some concluding remarks from Lieutenant General Haroon. Sir, over to you. Very kind of you both. Very interesting discussion we had, and on behalf of IPS, I will also like to thank all the panelists. Wonderful discussion, and for me, it is I have gained a lot of knowledge personally that how scientifically you people are handling this real estate business. And मैं इसमें एक चीज बड़ी मुझे खूबसूरत लगी, पता नहीं किसने कहा था ये, हाँ कि नकवी साहब ने कहा था कि आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी को आप ड्राइव करके देखते हैं, उसके कागजात चेक करके देखते हैं, फिर आप टेलीफोन भी करते हैं, वो आजकल सिस्टम है कि जी ये गाड़ी ठीक है, फिर मिस्त्री को साथ लेके जाते हैं। तो वाकई हमने भी घर खरीदे, चीप प्रॉपर्टी भी खरीदी बेची भी, तो मैं हैरान होता हूँ कि हम ये इतना प्रॉपर्टी में नहीं करते, हालांकि उसकी वैल्यू कितनी होती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी हैज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म। टेक्नोलॉजी जो मैं बातें सुन रहा हूँ, आई ओपनर फॉर मी इन अ सेंस के, और एक मुझे एक मिसाल याद आई है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इट इज लाइक मिल्क। हम पहले खुला दूध खरीदते थे, उसमें वो पानी डाल देता था, उसमें वो और वो अडल्ट्रेशन करता था, मिलावट करता था, लेकिन फिर आ गया पैकेज्ड मिल्क। वो प्रोसेस होता है, उसकी गारंटी होती है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप रियल एस्टेट को इस तरह कह लें कि अब आप खुला दूध न लेने जाएं, आप पैकेज्ड मिल्क लें जिसकी कोई गारंटी होगी और उसकी स्पेसिफिकेशंस होगी, कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, किसी का लिखा होगा ये किसने बनाया, कैसे बना, और बहुत सी इंस्ट्रक्शन भी होगी। सो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक पैकेज्ड मिल्क। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ देखी है कि यू हैव गॉन इनटू academia industry linkage, and there was a talk about bachelor's degree
in real estate science. There are educated, well-groomed, cultured RE advisors. So this is total transformation. And I would like to congratulate Imarat Group because your companies are the trendsetters. They have set the trend and others have followed. And best of luck to all of you. You're doing a wonderful job. And I have seen people in distress. Hard, लोग सारी उम्र पैसा कमाते हैं, जाके एक प्लॉट और एक घर बनाना चाहते हैं, उसको में भी गड़बड़ हो जाती है और बेचारे पिलर टू पोस्ट फिर रहे हैं कि जी हमारा मसला कौन हल करेगा. You are not only doing a business, but you are trendsetters and you are, helping the people to find the right property and at the right price and at the right place. So a wonderful job. Thank you very much. I personally stand educated. And Umar, thank you very much for a wonderful conduct of this webinar. Thank very you, sir. much. Thank you for your remarks. And I thank all the participants for their discussion. That's all from IPS. Allah Hafiz. Ji, thank you. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.